an alternate method to solve the homogeneous system Ax equal to 0. Case number 1 is about the unique solution when you have determinant of A equal to not equal to 0, and that unique solution is actually the trivial solution given by x equal to y equal to z equal to 0. X, y, z are generally they are variables. If you are taking 3 variables, then it will be x, y, z equal to 0. Otherwise, all the n variables will be 0, right? Second case is when determinant of A is equal to 0, and in that case we have infinitely many solutions, right? And those solutions are also called as non-trivial solutions, right? So the question is, find the values of L such that the system is 2x plus y plus 2z equal to 0. Second equation is x plus y plus 3z equal to 0, and third equation is 4x plus 3y plus lz equal to 0. Has first part is about trivial solution, trivial solution, and trivial solution is 0, 0, 0 solution, right? Second part is non-trivial solution, non-trivial solution. For trivial solution, you know that for trivial solution, determinant of A should not be equal to 0. So for first part, for trivial solution, determinant of matrix A should not be equal to 0, right? Rather than I should first make the matrix capital before actually starting the solution. Here capital A equal to 2, 1, 2, 1, 1, 3, 4, 3, L. So this is a coefficient matrix. This time we are not making augmented matrix because we are going to use this alternate method, right? Now comes the first part, and that is for first part, for trivial solution, determinant of A is not equal to 0. Now you just find the determinant of this matrix, and the determinant will be given by 2 L minus 9 minus 1 L minus 12 plus 2 3 minus 4 is not equal to 0. And that gives you L equal to it or all not equal to it, I think. 12 minus 18, and this will be minus L plus 12, and that will be minus 2, not equal to 0. So that will give you 12 minus L is L, and that will minus 20 plus 12, that will be L not equal to 8. So this is the answer. For trivial solution, you need that the value of L should not be equal to 8. Okay. Now comes the second part for non-trivial solution. Determinant of A should be equal to 0. As you can see that this is the method for non-trivial solution. You just put determinant of A equal to 0, right? And since determinant of A is same, will be same, that will give you L equal to 8, right? Solving this question, we didn't use any augmented matrix or any row operation like we are using yesterday. You can see that so many row operations were used yesterday, but this method just skips all those operations. It just tells you to find the determinant, and that's it. For those solutions, you can go like this, right? And let me take another question. Question number 2. Find the values of K such that the system is given
Three equations are there, and this system has a non-trivial solution. For non-trivial solution, you know that determinant of A should be equal to 0. And also find the solution in each case. You have to find the solution for each of the values of k, because there will be several values of k. It is possible that there may be more than one value of k, and for each of those values of k you have to find this solution. This is the question, and we are not going to use augmented matrix method in this problem, because we are focusing on this alternate method, though you can do these questions by the old method also. Okay, solution. So let me first write the since they are asking about the non-trivial solution, so I will just go to this second remark. The non-trivial solution is when determinant of A is equal to 0. So I will just make a determinant and will put that equal to 0, right? So for non-trivial solution, determinant of matrix A should be equal to 0. And now I will pick up the coefficient of x, y, and z to write the matrix A. So the first coefficient is k minus 1, then it is 3k plus 1, then it's 2k, k minus 1 again, and 4k minus 2, and this is k plus 3, 2, 3k plus 1, and 3 times k minus 1, so that will be 3k minus 3. And determinant, since you all use these vertical lines for determinant, but I don't use those vertical lines, because vertical lines has a different meaning. That's called a modulus function. So I just write det for determinant, and I form a matrix, right? So in case you are using these vertical bars, so do not write this word det, right? Either you use those vertical bars, or you write det, then use matrix brackets. Okay. So determinant will be k minus 1, and these two will be multiplied. I think 4 into 3, 12k square minus 3k square. That will give you 9k square. And it will be minus 12k and minus 6k, so that will be minus 18k, minus 18k, minus 18k, right? And this will be 9k plus k, 10k, so minus 10k, so that will be minus 28k. I think I'm not wrong. I don't know, I'm wrong or right, right? Calculation is complicated, or we can just we could have used row operations also in order to find the determinant, right? I think okay, right. That method, augmented matrix method, is beneficial in this question. Actually, that is easy. Finding the determinant is looking difficult. No? You can see that these are complicated squares, and then we have to multiply it with k. I mean, rather than using this method, we should go for the old method in this question, right? What should we do? Or should I apply row operation? Yeah, I can apply row operation. माइनस अगर मैं कर दूं तो जीरो हो जाएगा, वो तो मैं कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है. तो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि ये सॉल्व करना तो फिर महाभारत हो जाएगी. इसको सॉल्व करने में वक्त लग जाएगा. वक्त मैं बचाना चाहता हूँ. अगर मैं इसको ऑपरेट कर दूं k माइनस के, तो कर सकता हूँ. R2 में से ये तो ऑपरेशन किया जा सकता है. और डिटरमिनेंट निकालते हुए आप जानते हैं कि यू कैन ऑलवेज यूज दिस ऑपरेशंस. R2 elementary row operation, R2 minus R1, and you will be getting k minus 1, 3k plus 1, 2k, this will be 0, and this will be k minus 3, which will be 3 minus k, and leave this, or should we subtract this also? Okay, subtract this, then this will give me 3 minus k, I think. Yeah, 0, this will be 0. Should I use the another operation? R3 implies R3 minus R1. You all know that elementary row operation doesn't affect the value of determinant. That's why I'm applying this, and I don't want to mess up with that cubic equation, जो बड़ी खतरनाक आ रही थी, अभी आपने देखा होगा. मुझे आसान करना है काम, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ. अगर मैं इसको माइनस करूँ तो that will give me
3 minus k, I think, and this will be 0. This is good. Also minus करूँगा, that will be k minus 3. So I hope that this is now looking good, and we can solve it very fast, right? Okay, can you see that we can take common in this k minus 3 can taken common in R2, and can you see that k minus 3 can be taken from R3 also, right? So this is the advantage of using row operations sometimes while finding the determinant. You have done this in class 12 many times. So taking common, please take common. What can be taken common? From R2, you can take k minus 3 as common. From R3 also, you can take k minus 3 common. So you have taken common k minus 3 twice, right? And then comes the determinant. And this is k minus 1, 3k plus 1, 2k. This will be 0, this will be 1, and this will be minus 1. And this will be minus 1, 0, and this will be 1, and then equal to 0, right? So now it comes to just evaluate this determinant, and that is very easy. This will give you k minus 3 whole square, and the determinant of this will be k minus 1, and that will be 1, of course, and then minus 3k plus 1, and 0 minus 1, that will be minus 1, and then 2k, 0 minus minus 1, that will be plus 1, right? So that will give you k minus 3 whole square, and this will be k plus 2k will be 3k, 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 6k. Yes, minus 1 plus 1 will be cancelled. So this is what you get inside the brackets. So this will eventually give you 6k times k minus 3 whole square equal to 0. And from here you can have the values of k is equal to 0 and k is equal to 3. So you can see that this is simplified actually. Earlier we will be messing with those cubic equations, and you can see that very easily we got the values of k. So these row operations are very useful sometimes, right? Okay, so you have two values of k, and now the first part has been completed. The first part was asking about to find the wall values of k for which there was an existence of non-trivial solution. Right? Now comes the second part, find the solution in each case. Right? So we have two cases actually. This goes for case number 1, and this goes for case number 2. So from here I will write two cases. Right? So case 1. Case 1 is that if you choose k equal to 0 and put this k equal to 0 in the original system or in this matrix, you can put it anywhere, right? If you put k equal to 0, then what? Then and you need to find the solution. And since you need to find the solution, why don't we make the augmented matrix, because that will be helpful. Then C is equal to, and now I am going back to our old method, augmented matrix method, because this time I need to find the solution, not just the values of k, this time the values of x, y, z is also required. And that gives you C is equal to, and with this value of k, that's k equal to 0, you just put the k equal to 0, you will get, let me zoom out, and it will give you, if I put k equal to 0, it will give me minus 1, 1, 0, minus 1, minus 2, 3, 3, 2, 1, minus 3, and partition 0, 0, 0, right? So can we use row operations? Of course we can use row operations. If I use R2 implies R2 minus R1, and R3 implies R3 minus twice of R1, not minus, it should be plus. So that will give me what? That will give me the first row will be same, minus 1, 1, 0, partition 0, and
Second row will be changed 0, minus 2 minus 1, that will be minus 3. 3 minus 3 is 3 minus 0 is 3. 2 plus 2, yeah, 2 minus 2 0. 1 plus 2 is 3, and this will be minus 3, and this will be 0. Right? Now you can again use the row operation. R3 implies R3 minus R2. That gives you C equal to minus 1, 1, 0, partition 0, 0 minus 3, 3, partition 0, 0, 0, 0, partition 0. And now you can see that you have achieved the row reduced echelon form of C. Yes, somebody wants to ask something? Sorry, R3 plus R2 आएगा ना? Oh, sorry, extremely sorry. Now it is correct. Thank you. Now you can see that you observe that rank of A is equal to rank of C. You can see that rank of A is 2. You can see that matrix of this matrix has rank 2, and the whole matrix also has rank 2, and the ranks are equal, and that is equal to 2, and we call it small r. And there is less than 3, and 3 is actually a small n number of variables. X, Y, Z, and Z are 3 variables. So the system is consistent. Of course, there is no point about inconsistency when you are solving a homogeneous system, right? So thus system is always consistent. I'm not writing that. I will just write that infinite solution exists. Infinitely many solutions exist. But since nobody can give the infinite number of solutions, like nobody can count the infinite number of stars, we just need to give a one-line solution which will represent that infinite class of solution, right? You have to write one solution which will give infinite solution. That is what we can do, right? And to do that, we have to assume how many variables should be assumed as k. Who will tell me? Where is Hadid? Hadid Sheikh. Present, sir. Yes, sir. Present. So how many variables are assumed as k? N minus r. You know this? N minus r1, sir. One variable should be assumed as k. So which variable will you choose as k? Z, sir. Okay, z. You call it z or it is z these days? No problem, sir. No, I'm just asking you because in my childhood, our teacher told that it was Z for zebra, but with the passage of time, I'm observing that kids call it Z. I mean, this is taught in primary school to call it Z. Aditya Acharya also wrote Z, right? So it's Z. Sure. Yes, sir. Okay. So I will call it Z. Okay. So let Z equal to k, say, right? And if you put z equal to k, where will you put z equal to k actually? You need few equations from this last matrix, and those equations will be minus 3y plus 3z equal to 0, and other was minus x plus y equal to 0. So let us put z equal to k. So then if you put z equal to k, in this equation you will get what? You will get y equal to k. Am I right? Yes, sir. And what will be the values of x? That will be also equal to k, I think. Yes? K. Yes, sir. Okay, so this gives, so each of the variable is equal to k. So just now I'm just winding up this question. So x is equal to y equal to k. Oh, sorry, z. I missed z. Equal to k is solution, and of course this is not a solution. These are actually infinite number of solutions because you have because you have the infinite choice for k. K is arbitrary. I mean, you can put any k, right? Okay. So this is just the case number 1. Don't forget this k equal to 3 is for the second case. Now we will put this case number 2. This question is long actually, but
The last questions are always long, and they actually they represent the summary of the whole chapter. So it is very important to do the last questions. But generally at this young age, like you all, 18, 19, 20, you all love questions from the beginning of the exercise. You don't love the questions which are at the end of the exercise. But the truth is that if you are able to do the questions which are present at the end of an exercise, then it means that you are understanding everything of that exercise, right? Right. So I'm going to case number 2, and that is if I put k equal to 3. And where should I put k equal to 3? Of course, I need to put k equal to 3 here in the system, and then I will construct the augmented matrix, right? So if k equal to 3, then C equal to A partition 0, and let me zoom out it like this, and I think it would be no, I have to go back actually. This is, yeah, now we can. Are you able to see now? No. Let me copy this matrix. That will be good, because I need this matrix now. Then I will just put k equal to 3 here. Right. Okay. Okay, so this is our matrix in which I will put k equal to 3, right? This is not complete matrix actually. I will try to complete it by giving a partition, then writing 0 on the right hand side. But first I will put k equal to 3. So please guys, put k equal to 3. If you put k equal to 3 here, it will be 2. It will be 2, and the first column will be 2 to 2. It will be 10. It will be 10. Oh, and last element of second column will also be 10. I think every element of each column is same, and it will be 6. Also 6. This is also 6. So this is your augmented matrix this time. 0, 0, 0. Now who? और R3 माइनस R1 तो ठीक है, 1 और 2 दोनों 0 हो जाएंगे. बहुत बढ़िया. 2, 10, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. पार्टीशन 0. चलिए, अच्छा हो गया. अब ये बताइए कि इज इट द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ सी? इक्विवेलेंट फॉर्म तो आ चुकी है. Yes sir. Yes sir. अब आपको ये तय करना है कि रैंक कितनी है ए पी और सी की. What is rank of A? 1. And rank of C is also 1? Yes or no? Yes sir. दोनों की रैंक 1 है, लेकिन छोटा है किससे? 3 से. 3 से भी छोटा ही है. Yes sir. कितने इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस तो आएंगे आगे. Infinite solution. Infinitely. Exist. और कितनों को मानना पड़ेगा? किसी एक n को माइनस r. किसी एक को ही, 2 को. 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 आएगा ना इस बार. तो n माइनस r की वैल्यू 2 आएगी. 2 को मानना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा. अब एक से काम नहीं चलेगा, समझे? और देखो इक्वेशन कितनी मिलेगी. इक्वेशन बताओ कितनी मिलेगी. सर 2x plus 10y plus 6z. हाँ, एक इक्वेशन मिलेगी ना. तो अगर आप क्या एक ही को मानोगे तो आंसर तो निकल ही नहीं पाएगा ना. 2 को मानना पड़ेगा ना. वैसे भी अगर आप n माइनस आर को ना भी देखें तो भी एक वेरिएबल को मान के थोड़ी आंसर निकल जाएगा. जेड को के मान लोगे तो x निकलेगा, और x में y भी आएगा, फिर तो निकलेगा नहीं आंसर. 2 को मानना पड़ेगा. तो n माइनस आर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बुक में नहीं लिखा हुआ है ये चीज. n माइनस आर कभी नहीं, बुक्स में कहीं लिखा नहीं है कितना को के मानना है. तो 2 को मानना है, एक को नहीं. 2 को मानने का काम करेंगे आज ऋषभ जैन. ऋषभ जैन. यस सर. हाँ जी, ऋषभ जैन. 2 को मानना है आर्बिट्री. तो किस किस को मानूं? एक तो जेड को मान लेता हूँ. जी सर. K1 मान लेता हूँ. क्यों? और हाँ, जी y जी को सर. और y को मान लेते हैं K2, राइट? K2 सर.
जी जी सर। चलो तो फिर इसमें डाल के x निकाल लो बस। बताओ कितना आएगा x। यहाँ से आएगा x कितना आएगा, ये जाएगा 10k1 और ये कटेगा x, उससे कट जाएगा x इज इक्वल टू माइनस में आएगा शायद 2 5 या 10 k2 माइनस 3k1 ये आ जाएगा। क्यों? जी जी सर। जी सर। तो ये आ गया एक, तो ये वाला आ गया x। अरे बॉक्स ही नहीं बना आज, क्या हो गया? अब बन जाएगा, ये बना, ये तो आपने मान ही लिया था और ये आपने जान ही लिया था, तो ये आ, अरे फिर वही चीज हुई। हाँ अब ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन लिखने का समय आ गया है। और मोहम्मद ताबिश जो काफी समय से खामोश बैठे हैं एक कोने में, मोहम्मद ताबिश, मोहम्मद ताबिश, शायद मोहम्मद ताबिश यहाँ बैठे ही नहीं है। मोहम्मद ताबिश मुझे सुन पा रहे हो? कोई बात नहीं, मोहम्मद ताबिश ऑनलाइन दिख रहे हैं लेकिन सुन नहीं पा रहे हैं। मनीत आर्या, यस सर। कौन आया ये वापस? मनीत आर्या आ गए। मनीत आर्या, ये सॉल्यूशन है और इसमें आखिरी में क्या लिखना पड़ेगा? कौन कौन आर्बिट्री है इस बार? दोनों के दोनों आर्बिट्री हैं, K1 भी और K2 भी। ठीक है, तो ये था सवाल। कैसा लगा ये सवाल आपको? अच्छा लगा या नहीं लगा? ठीक लगा सर, ठीक लगा। ठीक लगा ना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि अभी इससे अगला पड़ाव हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक देखिए बार बार मैं आपके आगे राज खोलता जा रहा हूँ, और राज भी मैं वक्त के साथ खोल रहा हूँ, पहले नहीं बता रहा आपको, धीरे 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 करके। पहले मैंने आपको नॉन होमोजेनियस पढ़ाया, लेकिन जिस दिन नॉन होमोजेनियस पढ़ाया उस दिन ये नहीं बताया कि होमोजेनियस भी आएगा। फिर जिस दिन होमोजेनियस शुरू किया, शायद कल शुरू किया था, तो फिर ये नहीं बताया कि कुछ और भी आएगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक चीज मैं आपसे अभी तक छुपा रहा था, वो ये छुपा रहा था कि अभी तक मैं जितनी भी इक्वेशंस दे रहा था, जो भी सिस्टम दे रहा था, दैट वाज अ स्क्वायर सिस्टम। 3 इक्वेशन होती थी, 3 ही वेरिएबल होते थे। तब क्या होगा जब इक्वेशंस कम होंगी, वेरिएबल ज्यादा होंगे, या इक्वेशंस ज्यादा होंगी, वेरिएबल कम होंगे? तो फिर से नया पर्दा उठने वाला है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तब क्या होगा जब स्क्वायर सिस्टम नहीं होगा, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिमाग का वक्त आ गया, थोड़ा रुकने का, थोड़ा सोचने का कि अब तक आपने क्या किया। रिमार्क में लिख रहा हूं मैं ये बात कि सो फार, अब तक आपने देखा द सिस्टम हैड बीन, रहा था, स्क्वायर सिस्टम, एक स्क्वायर था, मतलब कि दैट इज नंबर ऑफ equations is equal to number of variables। ये तो आपने अब तक देखा, राइट? और ये भी कह सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और यू कैन से दैट A was a square matrix, ज्यादा अच्छा रहेगा साफ साफ शब्दों में। और मैट्रिक्स A was square, ऐसे भी कह सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपने किए सब में मैट्रिक्स A स्क्वायर मैट्रिक्स थी, राइट? अब हम वो बात करने जाएंगे जब A रेक्टेंगुलर होती है, राइट? तो सवाल ये आता है कि व्हाट हैपेंस, क्या होता है if A is not a square matrix। और एक ऑर्डर मान लेते हैं, एक ऑर्डर m क्रॉस n ले लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं A, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। m जो होता है दिस इज नंबर ऑफ रोज, n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। तो m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। सवाल ये है आपके आगे कि तब क्या होता है
तब क्या होता है आप जान लेते हैं, आगे बात करते हैं। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो m n से छोटा होगा या m n से बड़ा होगा। नंबर ऑफ रोज कॉलम से छोटी होंगी या नंबर ऑफ रोज कॉलम से बड़ी होगी, दो ही बातें हो सकती हैं। जैसे ही दो ही बातें होती हैं, या तो दिन होता है या दिन नहीं होता है। दो ही बातें होती हैं, या तो बारिश होती है या नहीं होती है। दो ही बातें होती हैं, या तो कोई नंबर इवन होता है या इवन नहीं होता है। मोहम्मद ताबिश, वापस आए मोहम्मद ताबिश या नहीं आए? अभी भी वापस नहीं है। टू केसेस एराइज, दो केस हो सकते हैं, या तो m छोटा होगा n से, या तो फिर m बड़ा होगा n से। मैं दोनों केस एक एक करके पढ़ाऊंगा। पहले केस की बात कर रहा हूँ, पहले केस में डिटेल में जा रहा हूँ, राइट। पहला केस, केस नंबर 1, और ये जो था ये आपका रिमार्क था, तो क्योंकि ये रिमार्क था तो इसको बॉक्स में भी बंद कर देते हैं। ये बड़े काम का रिमार्क है। इज लाइक स्टेशन, बस स्टॉप की तरह है। थोड़ा यहाँ पे रुकना है, सोचना है। सोचे जरूर रिमार्क पढ़ते हुए, रिमार्क को नजरअंदाज मत करें, राइट। जैसे कि सड़क पे चलते हुए जो चेतावनी के बोर्ड होते हैं, कॉशन साइंस, डेंजर साइंस होते हैं कि लाइक यू शुड स्पीड योर लिमिट विद इन 50, इस टाइप के साइन है, इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, राइट। एंड डू नॉट हॉन्क योर हॉर्न, ऐसे भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे। तो सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए सड़क में चलते हुए। तो ऐसे ही आपको जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं तो रिमार्क में जरा के बारे में थोड़ा गौर से सोचना चाहिए, सिर्फ सवालों के पीछे नहीं भागना चाहिए। रिमार्क बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हम केस नंबर 1 में आ रहे हैं। केस नंबर 1, केस 1, और केस 1 है कि तब क्या होगा जब m छोटा हुआ n से, राइट। तो इसके अंदर अब आप पढ़ने जा रहे हैं। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो प्लीज मुझे रोक लीजिए, पूछ लीजिए कि सर ये क्या हो रहा है, क्यों आप कर रहे हैं। मोहम्मद ताबिश, मोहम्मद ताबिश तो अब दिख रहे हैं लेकिन है नहीं यहाँ पे। मोहम्मद ताबिश, चलिए किसी और से पूछते हैं। तन्मय बत्रा, तन्मय बत्रा भी यहाँ पे नहीं है। सैंतनी, Yes, sir. okay, so you are here, fine. So you are understanding what we are going to do now? I mean, you are understanding this track, you are getting this track. रास्ते का पता चल रहा है आपको, क्या कर रहे हैं, किधर मुड़ रहे हैं, महसूस हो रहा है? हाँ 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 सर, रिमार्क के बाद हाँ, तो केसेस किस ले तरफ रहे हो आप? केसेस ले रहे हैं, तो किसके बारे में बात करने लगे हम अचानक? जब क्या होगा सर जब दोनों वेरिएबल्स और वो इक्वल नहीं होंगे सर। दोनों वेरिएबल्स, आई मीन नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल अलग अलग होंगे। अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा है और इसमें कितने, वेरिएबल्स, हाँ, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन लिखा है, हाउ मेनी इक्वेशंस आर देयर इन दिस सिस्टम? इक्वेशन 2 और वेरिएबल 3 है। वेरिएबल 3 है, तो अलग अलग इक्वेशन कम है, वेरिएबल ज्यादा है। तन्मय बत्रा कह रहे हैं मैं लिसनिंग। तन्मय बत्रा, यू आर लिसनिंग बट यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग। आई वाज कॉलिंग योर नेम। आपकी आवाज नहीं आती है तो फिर मुझे लगता है कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, और ये बड़ा खराब एहसास होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ बच्चे ही नहीं है, मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। इसलिए बीच बीच में सबसे पूछना पड़ता है कि भाई आप हो या नहीं हो, ठीक है। तो सैंतनी ने बता दिया कि सर इसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं वो कुछ कम है, और वेरिएबल तो 3 ही है लेकिन इक्वेशंस तो कम है। तो इसका मतलब अब यहाँ से आज के बाद और आज के बाद कुछ दिनों तक, कम से कम इस सैटरडे तक यही चलता रहेगा। इक्वेशंस, कभी इक्वेशंस कम पड़ जाएंगी तो कभी वेरिएबल्स कम पड़ जाएंगे, बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा रास्ता अलग जा रहा है। तन्मय बत्रा, हर चीज का लिख के जवाब देते हो, घर में भी तुम ऐसे ही बात करते हो सबसे। माइक क्यों नहीं ऑन करते अपना?
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं सी, और देखेंगे आप इसको कि पहली रो होगी 1 1 1 पार्टीशन। ये बताइए ये होमोजीनियस सिस्टम है नॉन होमोजीनियस है? ये कौन बताएगा? हरीश शेख बता देंगे। चलो हरीश शेख, यस सर। ये कैसा सिस्टम है? होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस? सर सिस्टम तो देखो, वैसे देखा नहीं मैंने सर। कमाल है, दिखा नहीं तो ये देखो ना ग्रीन कलर का एक साफ साफ लिखा हुआ है। कैसा सिस्टम है? होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस? नॉन होमोजेनियस सर। नॉन होमोजीनियस, मैंने भी बता दिया नॉन होमोजीनियस। तो इसमें फिर वही वो तो पुरानी वाली बात होगी। नॉन होमोजीनियस तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं और क्या करते हैं, ऑगमेंटेड क्या मैट्रिक्स पहचानते हैं और उसकी डायगोनल पहचानते हैं। यही है जो स्केल एलिमेंट जीरो करते सर। डायगोनल से नीचे के जीरो करते हैं। तो तुम करने की कोशिश करोगे इनको जीरो? यस सर एब्सोल्युटली। चलो फिर जरा मदद करना, जरा मेरी बताना तो जरा। ऑपरेशन R2 implies, R2 implies R2 minus 2 times of R1। वेरी गुड। तो पहली रो क्या हो जाएगी? 1 1 1 पार्टीशन 3, दूसरी रो 3 और सॉरी 0 0 0 1 minus 1 -1 क्यों होगी? -3 नहीं हो जाएगी? -3 ये -2 हो जाएगी शायद, है ना? यस सर। ओके, तो इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज हो गया या नहीं हो गया? सर आ रही है। Okay, parts Sharma is asking, do we have to make? Okay, no part, we can't do that because this is a system of equation. Actually, they take care of this, do respect this equal sign. Actually, we can't take transpose. अगर ये अकेला ए होता तो कर लेते पार्थ। और पार्थ ने कितना खूबसूरत क्वेश्चन पूछा जो कोई नहीं सोच रहा था। तो मैं यहाँ पे पार्थ का नाम और उनका पता लिखूंगा। पार्थ ने सवाल पूछा था, अच्छा क्वेश्चन है ये। पार्थ ने सवाल पूछा था, क्या पूछा था? ट्रांसपोज। हाँ, कैन वी टेक transpose of C to solve, यही पूछा था, यही क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, राइट। तो हमने जवाब दिया इसमें नो। क्यों नहीं दिया? क्यों दिया? हमने कहा था डू। गौरव कुमार तो बड़ी जल्दी हैं। रिस्पेक्ट द इक्वलिटी साइन। इक्वलिटी का साइन बनाना ये वाला इसकी वजह से नहीं कर सकते, वरना कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशंस गिवन है इसलिए नहीं कर रहे ऐसा। तो ये अच्छा सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था, क्योंकि सवाल था तो इनके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। राइट, खैर ये इक्विवेलेंट फॉर्म आ गई। मैं यहाँ पे लिखने वाला था इक्विवेलेंट फॉर्म आर आ रही है यहाँ पर, इक्वल टू आर आर ई एफ सी। तो अब कमेंट करेंगे इसके ऊपर। कौन कमेंट करेंगे? बहुत दिनों से बात नहीं करी कार्तिकेय वशिष्ठ से। कार्तिकेय कितनी है? 2 सर। वेरी गुड। और इस पूरे की 2 वेरी गुड। लेकिन 2 तो है, लेकिन ये तो रैंक है तो उसको आर लिख देते हैं, लेकिन ये छोटी आ रही है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने गिनना दो जरा। सर 3 वेरी गुड। तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? इनफिनिट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन? सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वेरी गुड। देयरफॉर लेकिन पहले लिख देते हैं कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये कह देते हैं कि इसका जवाब तो है सिस्टम इज कंसिस्टेंट, क्योंकि जो इस टाइप के सिस्टम होते हैं ना नॉन होमोजेनियस वाले, कभी कभी उनके जवाब नहीं भी होते। सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्व करे बिना मत चले जाना, ठीक है? यस सर। सॉल्व करवा के ही खत्म होगा सवाल। चलो करवाओ सॉल्व इसको। कैसे करते हैं सॉल्व इसको? सिस्टम, आखिरी सिस्टम से इक्वेशन लिख देते हैं ना। दिस गिव्स, क्या मिलेगी इक्वेशन? बोलना जरा, इक्वेशन क्या मिलेगी? सर y minus 3z is equal to minus चलो एक और मिलेगी ऊपर वाली, ये वाली। x plus y plus z is equal to 3। अब दो है, इसे इक्वेशन दो हैं बस। हाँ ठीक है,
इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, 3, किसी को के मानना पड़ेगा, कितनों को मानना पड़ेगा, के 1 को मानना पड़ेगा, के या 2 को मानना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में तो 2 को मानना था, k1 k2, इसमें कितनों को मानना पड़ेगा, k1 k2? एक को मानना पड़ेगा। लिख देते हैं कि n माइनस आर क्योंकि 1 आ रहा था, क्यों n माइनस आर कितना आएगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। जितना n माइनस आर आएगा उतनों को मानना, n माइनस आर को नजरअंदाज मत करना, ठीक है। n माइनस आर वेरिएबल एज आर्बिट्री। तो चलो k को मान लेते हैं ना, z को माना k, तो y कितना आएगा इस वाली से, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y 3k माइनस 2 आ जाएगा शायद, है ना। यस सर। और x भी निकालना पड़ेगा, यस सर। x आ जाएगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा ना x को। यस सर। x आ सर y की जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे उसमें। हाँ तो करनी है पुट आपको, x आ जाएगा 3 माइनस एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा। तो ये सॉल्व करके आगे कितना, x इक्वल टू 3 2 5, ये आ जाएगा, है ना। यस सर, प्लस 4k। तो तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं और यही आपका आंसर है। x इक्वल टू 5 माइनस 4k, y इक्वल टू 3k माइनस 2 एंड z इक्वल टू k इस सॉल्यूशन। खत्म हो गया क्वेश्चन या कुछ बचा है इस क्वेश्चन में? तो कुछ बचा नहीं है शायद। यस सर, खत्म हो गया। वेरी गुड, वेरी चलिए खत्म हो गया। अब एक काम करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन फिर से बना लेते हैं, लेकिन राइट साइड में अब 0 रख देंगे, है ना। यस सर। लेकिन जीरो रखेंगे भी तो नहीं, 0 रखेंगे तो क्या होगा, हमेशा आंसर आएगा, क्योंकि n माइनस आर की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा ही होगा। बल्कि ऐसा बनाते हैं जिसमें नो सॉल्यूशन आ रहा हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका तो सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि नो सॉल्यूशन आ जाए, क्योंकि हमेशा नंबर ऑफ n माइनस आर हमेशा कुछ ना कुछ आएगा। सॉल्व x प्लस वाई इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 1, राइट। फिर से आप देख पा रहे होंगे कि इक्वेशंस हैं कम, वेरिएबल्स हैं ज्यादा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब आप बनाएंगे, मैट्रिक्स C इक्वल टू A पार्टीशन B, बनेगी आपकी C इक्वल टू 1 1 1 पार्टीशन 3 2 2 2 पार्टीशन 1। तो ये तो आपकी बन गई मैट्रिक्स। अब क्योंकि ये बनी है मैट्रिक्स, तो आप इसमें ऑपरेशन भी लगाएंगे, जाहिर सी बात है। ऑपरेशन आप लगाएंगे, R2 implies R2 minus twice of R1, of course। ये ऑपरेशन आप लगाएंगे, जैसे ही आप ये ऑपरेशन लगाएंगे तो आपको मिलेगा C इक्वल टू 1 1 1 पार्टीशन C 0 0 0 पार्टीशन -2। अब मुझे बताइए कि इक्विवेलेंट फॉर्म तो आ चुकी है, दिस इज RREF ऑफ C, बट क्या यहाँ रैंक ऑफ A बराबर आ रही है रैंक C के? व्हाट इज रैंक ऑफ A? सर रैंक ऑफ A is 1 और रैंक ऑफ C 2 सर। C2 आ रही है, तो बराबर तो आ ही नहीं रही, तो छोटी आ रही है ना। यस सर। सिंस रैंक ऑफ, तो कौन सा सॉल्यूशन आया, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसका। इनकंसिस्टेंट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। सिस्टम जो है वो गलत है, जवाब मतलब सवाल ही गलत है, तो सॉल्यूशन किस बात का देना, राइट। यहाँ पर लिख देते हैं इसको भी। राइट, तो इसका कोई जवाब नहीं। अब आपने 2 सवाल किए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि बहुत सारे जवाब थे, सेकंड में देखा एक भी जवाब नहीं था। यूनिक सॉल्यूशन तो कभी आने से रहा है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन तो तब आता है जब रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स होता है, वो तो कभी आ ही नहीं सकता। तो उसको मैं बजाय सवाल कराने के, जो हो ही नहीं सकता उसका सवाल क्या बनाना, उसको तो
हम रिमार्क लिखा देते हैं, राइट। क्या आप समझ पा रहे हैं? इस कैटेगरी में जब m लेस देन n होता है, इस कैटेगरी में ऐसा कोई सवाल नहीं बनाया जा सकता जिसमें कि यूनिक सॉल्यूशन निकले। ये कहना चाह रहा हूं। क्या आप समझे मेरी बात को? दिस इज एन ऑब्जर्वेशन। जीरो जीरो -5, ओह सॉरी, राइट, 0 0 -5, तो -5 क्यों? अच्छा हाँ, -5, ठीक, -5। चलिए, अच्छा कि आपने बता दिया। ऑब्जर्वेशन ये है, इफ m इज लेस देन n, जो कि हम पढ़ रहे हैं, राइट, एंड जो राइट हैंड साइड है b वो 0 ना हो, अगर जैसे कि आपने देखा, आपने 2 सवाल किए, दोनों में m छोटा था n से और राइट हैंड साइड वाज नॉन जीरो, और इस केस में ये गारंटी है, देन द सिस्टम cannot have a unique solution। यूनिक सॉल्यूशन कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? रीजन है इसका, इसलिए मैं सवाल भी नहीं बना सकता। मैंने 2 क्वेश्चन बना लिए। पहला क्वेश्चन इनफाइनाइट सॉल्यूशन का बनाया, सेकंड क्वेश्चन मैंने बनाया नो सॉल्यूशन का। मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं डिजाइन कर सकता कि यूनिक सॉल्यूशन आ जाए। किस लिए नहीं डिजाइन कर सकता? क्योंकि मैं जानता हूं कि जो रैंक आएगी ए की, वो हमेशा छोटी आएगी या बराबर आएगी किससे? अभी कौन बताएगा? हदीस शेख बताएंगे इसको। हदीस शेख, सर ये बताओ मुझे, रैंक ए के बारे में बताना है। रैंक ए की 2 बातें, या तो रैंक 2 आई, ये इसमें कितनी रैंक आई? ए की 1 आई ना, नेट वन आई सर, और इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में कितनी आई? 2 आई, यहाँ पे 2 आई राइट। सर। कभी 3 आ सकती थी इसकी रैंक? नहीं सर, इक्वेशंस नहीं है तो नहीं आएगी सर। इक्वेशन तो कैसे आएगी? तो इसका मतलब ये पक्का है कि जो रैंक, ये जो इसकी रैंक ए की आएगी, वो m आएगी या m से छोटी आएगी? m का मतलब नंबर ऑफ रोज है, m का कुल मतलब, प्रोडक्ट। अच्छा रोज ही तो भाई 2 ही रोज है आपके पास, तो 3 रैंक कहां से ले आओगे? रैंक की डेफिनेशन यस क्या सर, लिखवा रखी है? द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज दिखाया था मैंने, ये नॉन जीरो रोज यस सर, कह सकते हैं आप, अगर आप इक्वल फॉर्म में जाएं। 2 ही रो है तो 3 रैंक लाने की ख्वाहिश ही करना बेकार है। सैलरी आपकी है 1 लाख रुपए और आप सोच रहे हैं कि 2 लाख रुपए खर्च कर देंगे, तो वो ख्वाहिश बेकार है, राइट। नंबर ऑफ रोज कम है और रैंक आप ज्यादा चाह रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो रैंक जो भी आएगी वो या तो m आएगी या m से छोटी आएगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? लेकिन n तो नहीं आ सकती ना। m किससे छोटा है? n से। ये देखो m किससे छोटा है? n से। तो कभी भी, और राइट, राइट, ठीक है। तो क्या कभी यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। यूनिक सॉल्यूशन के लिए m और n को क्या होना पड़ता है? इक्वल होना पड़ता है। व्हाट इज m? m होता है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ इक्वेशंस। व्हाट इज n? नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो कभी भी m और n बराबर ही नहीं हो सकते, तो फिर कैसे ख्वाहिश कर सकते हो यूनिक सॉल्यूशन के? ये इसका रीजन है। क्या आप समझ गए? सबके सब समझ गए? हदीस शेख के साथ साथ? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ख्वाहिश यूनिक सॉल्यूशन की मत करना, ठीक है। जैसे कि पानी में तैरने वाली मछली कभी आसमान में उड़ने की ख्वाहिश नहीं करती है,